غزہ میں اسرائیلی جاریات 7ویں روز بھی جاری ہے۔ صہیونی فوج نے پچھلے 6 دنوں میں غزہ پر 6000 بم گرانے کا انکشاف کیا ہے۔ گزشتہ سب 750 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ جبالہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 45 فلسطینی شہید اور درجنیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کے بعد شہداء کی تعداد 1570 ہو گئی، جن میں 500 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 2500 سے زائد مکانات تباہ، جبکہ 30,000 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 4,30,000 شہری گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے زمینی کارروائی کے لیے شمالی غزہ کو خالی کرنے کی دھمکی دی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ حماس نے دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کا ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد لبنان کی سرحد پر بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس کے بعد اسرائیل نے سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہتے فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت کا 7واں روز جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بھی غزہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ صہیونی جنگی طیاروں کی گنجان آباد جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی رہائشی عمارت پر شدید بمباری، 45 افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وحشی فوج کے مطابق گزشتہ شب 750 مقامات پر بمباری کی، جبکہ گزشتہ 6 دنوں میں غزہ پر 6000 بم گرائے۔ بمباری سے 2500 سے زائد مقامات تباہ، 30,000 کو جزوی نقصان پہنچا۔ جارحیت کے باعث 4,30,000 سے زائد شہری گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اسرائیل نے زمینی کارروائی کے لیے شمالی غزہ کو خالی کرنے کی دھمکی دی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ کو خالی کرنا ناممکن ہے۔ زمینی کارروائی کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے حماس نے کہا کہ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسری طرف حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج پر راکٹ حملوں کے بعد لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر بھی کشیدگی بڑھ گئی۔ صہیونی فوج کی جانب سے مزید دستے بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیل کو دھول چٹانے والے القسام بریگیڈ نے صہیونی ریاست کو نقصان پہنچانے کی تفصیلات بتا دیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو العبیدہ نے طوفان الاقصی آپریشن سے متعلق جاری بیان میں کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن میں منصوبہ بندی اور توقع سے زیادہ اہداف حاصل کیے گئے ہیں۔ غزہ میں دشمن فوج کے دستوں پر 15 پوائنٹس کے علاوہ 10 دیگر فوجی پوائنٹس پر بھی حملہ کیا۔ جامع منصوبہ بندی کے ساتھ ہونے والے حملے کے لیے 3000 جنگجوؤں کو تربیت دی۔ 1500 جنگجو امدادی کارروائیوں کے لیے سٹینڈ بائی پر تھے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم امت اسلامیہ کی فتح کا نعرہ بجاتے ہیں، دشمن سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے زمینی راستے سے غزہ میں داخل ہونے کی جرات کی تو ہم تمہاری فوج کو کچل کر رکھ دیں گے۔ پچھلے 1 سال کے دوران ہم نے اسرائیل کو انٹیلیجنس نقطۂ نظر سے شکست فاش دی۔ آپریشن سے پہلے ہم اپنے ارادوں، تربیت اور اپنے اقدامات کو چھپانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اسرائیلی حراست میں موجود مزاحمت کاروں کو بھی پیغام دیا کہ وہ پریشان نہ ہوں، ہمارے پاس جو ہے وہ انہیں آزاد کروانے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد پہلی بار حماس کے نائب صدر صالح العروری کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروری نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں ہفتے کے روز منظم منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست کے علاقوں میں 1200 مزاحمت کاروں نے حملہ کیا۔ حملے کے بعد ہم خود بھی حیران تھے کہ اسرائیلی فوج صرف 3 گھنٹے میں ہی ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ صالح العروری نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں ہر چیز کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن وہ ہمارے فوجی ڈھانچے کو متاثر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں دل دہلا دینے والے مناظر۔ اسرائیلی بمباری سے زخمی بیٹا باپ کو دلاسا دے رہا ہے۔ گزشتہ شب میزائل حملے میں زخمی باپ بیٹے کے جب اسپتال میں ملاقات کرائی گئی تو زخمیوں سے چور بیٹا غمزدہ زخمی باپ کو دلاسا دیتا رہا۔ کہا بابا میں ٹھیک ہوں، فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوا، رونا بند کریں۔ پاکستان نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیز فائر کی بھرپور کوشش کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا
کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل امتیازی سلوک اپنا رہا ہے۔ غزہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنا کر معصوم جانوں کا ضیاع کیا جا رہا ہے۔ غذائی اشیاء روکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان فلسطینی مسئلے کا مضبوط حامی ہے۔ پاکستان OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ Pakistan strongly condemns the indiscriminate and disproportionate use of force by Israeli authorities against civilian population in Gaza and calls for an immediate cessation of hostilities. We are deeply concerned about the fast deteriorating and dire humanitarian situation in Gaza due to the inhumane blockade and collective punishment by Israeli forces. The decision to cut off electricity, fuel and water supplies is unjust and should be reversed. فلسطینیوں پر حملے اور ظلم و بربریت کے خلاف لاہور کے شہریوں میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہریوں نے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کی مذمت کی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جب فلسطین پر ظلم ہوتا ہے تو تمام بین الاقوامی تنظیموں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ آج فلسطین کے مجاہدین نکلے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے فوجیوں کو مارا اور اسرائیل کو برباد ہونا چاہیے۔ ساڈے حقوق بندو سانو پورا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی بھی مسلمان ساڈے مسلمان بھائی ہے، جنی کسی دی ہمت ہے انہاں ساتھ دینا چاہیے نہ کہ اللہ انہاں دی مشکلاں آسان کرے۔ موجودہ صورتحال پہ ہم فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اظہار ہمدردی بھی ہے، اور جو عالمی میڈیا اور عالمی برادری ہے اس کا جو کردار ہے وہ افسوسناک ہے۔ تعاون کرنا چاہیے انہاں نال، مسلمان اسی ہے اسی چیز مسلمان آنا تے مسلمان نال مسلمان تعاون کرے، انہیں پورا انہاں نال کام کیتا جاوے۔ اسرائیل ہے وہ کافی دیر سے ان سے زیادتی کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کافی دیر سے وہ زیادتی کرتے آ رہے ہیں، اب ان کو زیادتی کا ازالہ بھگتنا پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو ایک جو مظلوم ہوتا ہے اس پہ ظلم کرتے رہو اور اس کے لیے تو اب ہم ساری مسلم کنٹری جتنی سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے اور ظلم و بربریت کے خلاف ملتان کے شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جاریات کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کو مل کر فلسطین کی مدد کرنی چاہیے۔ فلسطین کے بارے میں اپورے اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ سے مسلمان ہیں، مسلمان تھے، مسلمان رہیں گے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا اخلاقی روحانی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں۔ فلسطین کی سرزمین سے ہماری تاریخی وابستگی ہے، ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے۔ فلسطینی بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بخار سے دکھتا ہے۔ تو ہم بالکل مذمت کرتے ہیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین پہ، اور ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو کبھی بھی الگ نہیں چھوڑیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے حق میں بات کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ہماری مقدس زمین ہے، اور وہاں پہ ہمارے پیارے انبیاء کی زمین ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے۔ اس فلسطین کی طرف ہمارے دشمن اسرائیل غلط آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ناپاک عزائم کو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف جہاد کریں اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ ان کے قدم اس میں شامل ہو، جنگ میں ان کی مدد کریں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے کچھ سیاسی خبریں آپ تک پہنچائیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر شروع، متعدد ملاقاتیں طے ہیں۔ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے۔ نواز شریف کی دبئی میں بھی متعدد ملاقاتیں طے ہیں۔ نواز شریف دبئی میں 3 دن قیام کے بعد 21 اکتوبر کو لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاست سے کام لانا ہوگا۔ معاشی اور سیاسی سے کام ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ تاجر کی دکان چلے گی تو پاکستان چلے گا۔ شہباز شریف کا لاہور میں تاجروں سے خطاب، کہا معیشت مستحکم ہو گئی تو ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ قوم 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال کرے۔ تفصیلات لاہور سے اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پنجاب تاجر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف نے وطن کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا، ملک کو اندھیروں سے نکالا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ملک بھر میں اورنج اور گرین لائن بسیں اور ٹرین چلائی۔ اورنج لائن جیسا منصوبہ ملک بھر میں نہیں، رنگ روڈ منصوبہ نہ ہوتا تو لاہور کے ٹریفک کا کیا حال ہوتا۔ یہ سب منصوبے نواز شریف کی قیادت میں مکمل ہوئے۔
किस तरीके से सी पैक में नवाज शरीफ के दौर में ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ, इसके बावजूद कि 3 साल की ताखीर जिसकी कोई वजह नहीं थी कि पीटीआई ने अदालतों में दरखास्तें दी और तरह तरह के इल्जामात लगाए। अदालतों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन फिर ताखीर के साथ ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन मार्शाअल्लाह के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत को दूसरी बार खत्म किया गया। ये वो दौर था जब भारतीय वजीर आजम वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरक्की देखकर हैरान थी और जब नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बना तो मुल्क को एक बार फिर अंधेरों से निकाला। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हमारी हुकूमत आई और हमें महंगाई विरसे में मिली। पीटीआई ने रियासत को बर्बाद कर दिया था। हमने रमजान में 70 अरब रुपए की सब्सिडी देकर केपी और पंजाब में सस्ता आटा दिया। अगर आवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो 21 अक्टूबर को अपने कायद नवाज शरीफ का भरपूर वालिहाना इस्तकबाल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज कौमी असम्बली के हल्कों NA 134 की यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों, काउंसलरों और कारकुनों से मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज शरीफ यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर मुशावरत करेंगी। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज कौमी असम्बली के हल्कों NA 134 के यूनियन काउंसिल से मुलाकात करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का मामला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसों और कन्वेंशन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज गुलशन अनवार वंडाला दयाल शाह शेखुपुरा में होगा। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ जो कि वतन वापस आ रहे हैं, इस हवाले से उनकी इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे और कन्वेंशंस का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सियासी पावर शो करेगी। गुलशन अनवार, वंडाला दयाल शाह और शेखुपुरा में आज ये सियासी पावर शो होगा। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के एजेंडे पर बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन करवाने से तैयारी पूरी है। माली ज़रूरियात के लिए इलेक्शन कमीशन के वज़ारत ख़जाना के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी हल्का बंदियों और दीगर मामलात पर अपनी मशक़ें बहुत हद तक पूरी कर चुका है। इजाज़त मिली तो चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं और इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। वेब TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि इंतखाबात में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात दूर करने के लिए इक़दाम जारी हैं। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से अपने इंतजाम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर चुका है। हल्का बंदियों समेत दीगर मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और पोलिंग यूज़ के हवाले से भी इंतजाम हतमी मराहिल में हैं और उन्हें कोई शुबा नहीं कि जिस तारीख का भी ऐलान किया जाएगा उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन PTI समेत किसी भी सियासी शख्सियत के बारे में जो भी कोई फैसला होगा वो अदालती अमल के नतीजे में होगा। अगर अदालती अमल के नतीजे में चेयरमैन PTI को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलती है तो वो हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो मैं कैसे इस पाबंदी को ख़त्म कर सकता हूँ। एक सवाल के जवाब में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए तो इस वक्त चेयरमैन PTI की हुकूमत थी। उस वक्त ना तो इस निगरान सेटअप और ना ही PDM जमातों की हुकूमत थी। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा और इन सवालात के जवाब भी कानूनी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लिबर्टी चौक में PTI जलसा नहीं कर सकती तो दूसरी जमातों को भी इसकी इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट से आपको अपडेट करें, जहां तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि लिबर्टी चौक में PTI जलसा नहीं कर सकती तो दूसरी जमातों को भी उसकी इजाज़त नहीं होगी। जस्टिस राहिल कामरान ने दरख्वास्त पर समाअत की। DC ऑफिस की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ। 9 मई को PTI कारकुनों ने एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की अदालत में परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत जज की रुखसत के बाइस आगे ना बढ़ सकी है। ड्यूटी जज ने परवेज इलाही की इस्तेदा के बावजूद केस की समाअत के लिए आइंदा तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर कर दी है। ATC जज इस्लामाबाद अबुल हसनान सुल्करनैन की रुखसत के बाइस परवेज इलाही को ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद के सामने पेश किया गया है। परवेज इलाही के हमरा वकील सफाई सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी अदालत में पेश हुए। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्तफसार किया कि क्या परवेज इलाही की हद तक चालान अदालत जमा हो गया है, जिस पर तफ्तीश अफसर ने बताया कि परवेज इलाही की हद तक चालान आ गया है, नोटिस भी हो गया है। जबकि ATC अदालती अमले ने बताया कि परवेज इलाही की सिर्फ डिजिटल रिमांड की तौसी करनी है। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स किए कि शरीक मुल्जिमान के साथ ही परवेज इलाही की भी अगली तारीख रख देते हैं, जिस पर परवेज इलाही कुर्सी से उठकर रोस्टम पर आ गए और अदालत से इस्तदा की कि 24 अक्टूबर तारीख नहीं रखें। वकील सफाई सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने भी अदालत से इस्तदा की कि 24 अक्टूबर से लंबी तारीख रख दें। परवेज इलाही की लाहौर की अदालत में भी पेशी है, तमाम अदालत परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में तौसी करते हुए केस की समाअत 24 अक्टूबर तक ही मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की कमरा अदालत के बाहर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर नून लीग को बड़ी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियत का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ का क्या बयानिया बनाते हैं। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो रह गए हैं। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके बगैर इलेक्शन बेमायने होगा। साबिक वजीर आला का कहना है कि साइफर केस कोई बड़ी बात नहीं है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI साइफर केस में सुरखुर होंगे। परवेज इलाही ने जेल में सहूलियात के फुकदान का तस्करा भी किया। कहते हैं कि जेल में जेल वाला खाना दिया जा रहा है, जिसके बायस कल से पेट खराब है। जेल वाले सहूलियात के हवाले से किसी अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। जेल में मुझे ज़ाती मौलिद से इलाज की भी सहूलत नहीं दी जा रही है और सेल के सामने वाली दीवार पर भी ताहाल नहीं हटाया गया है। नादरा ने वजाहत की है कि POR और ACC कार्ड के हामिल अफराद जिनके कार्ड की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम के इस मरहले में शामिल नहीं है। इस सिलसिले में पॉलिसी का ऐलान बाद में किया जाएगा। नादरा ने वजाहत कर दी है कि POR और ACC कार्ड के हामिल अफराद जिनके कार्ड की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम के इस मरहले में शामिल नहीं हैं। इस सिलसिले में पॉलिसी का ऐलान बाद में किया जाएगा। 7000 SMS सर्विस इस वक्त काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान बाद में पॉलिसी का ऐलान करेगी। जिन अफराद के कार्ड्स की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई वो गैर कानूनी गैर मुल्की के खिलाफ मुहिम में शामिल नहीं। साकिब सैयद से मज़ीद जान लेते हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल, गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई पर नादरा तर्जुमान का कहना है कि POR और ACC कार्ड के हामिल अफराद जिनके कार्ड की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई वो गैर कानूनी और गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम का इस मरहले में शामिल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में पॉलिसी का ऐलान बाद में करेंगे। नादरा तर्जुमान का मजीद कहना है कि 7000 SMS सर्विस इस वक्त काम कर रही है। जी साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जिन अफराद के कार्ड की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में शामिल नहीं हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 277 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में तेजी के बायस 100 इंडेक्स 49,000 की हद अबूर कर गया है। अब डेट करें आपको इस हवाले से डॉलर मार्केट 402 पॉइंट्स की कमी से बंद हो गई है। मजीद जानते थे नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। मार्केट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया मुसलसल तगड़ा हो रहा है। ओपन मार्केट में आज डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 278 रुपए से कम होकर 270 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया 8 पैसे की मजीद कमी के बाद 278 रुपए 58 पैसे से कम होकर 270 रुपए
50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। वही दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान है। तेजी के बाद 100 इंडेक्स 49,000 की हद अबूर कर गया है। मार्केट 402 पॉइंट्स के इजाफे से 49,154 पर ट्रेड हो रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 297 पॉइंट्स के इजाफे से 48,771 पर बंद हुई। ठीक है, कामरान चौहान हमें अपडेट कर रहे थे। आलमी मार्केट और एक्सचेंज रेट में फ़र्क के बायस अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी लाइन पर मौजूद है। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और एक्सचेंज रेट के बायस रुपया भी जो है वो मुस्तहकम हुआ है। गुज़िश्ता 20 रोज के दौरान डॉलर की कीमत में जो है वो तकरीबन 30 रुपये तक कमी हुई है, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी आई है वो $11 फी बैरल तक आई है। तो पाकिस्तान में जो है वो आइंदा हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 से 30 रुपये फी लीटर जो है वो कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल जो है वो 30 रुपये से ज़्यादा उस पर कमी बनती है और कीमत जो है वो 300 रुपये पर लीटर से कम आने की जो है वो कम होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो उसमें 20 से 25 रुपए तक जो है वो फी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा जो है वो इस हवाले से वर्किंग 14 अक्टूबर को तैयार करेगा। वजारत खजाना जो है वो अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी और उसके बाद 16 अक्टूबर को जो है वो नई कीमतों का इतलाक होगा। तो इस हवाले से कभी उम्मीद है कि अवाम को जो है वो इस दफ़ा आइंदा हफ्ते से जो है वो बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कामरान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। अस्करी क़यादत और हुकूमत की अन तक कोशिशों और मेहनत के समरात, पाकिस्तान मुआशी बहाली के सफ़र पर गामज़न हो गया। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 35% तक बेहतर हो गई। की मईशत की बेहतरी का मिशन, अस्करी क़यादत और हुकूमत के इक़दामात, मुल्क बदलने लगा, तरक्की का सफर शुरू हो गया। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर हो गई, जबकि साल 2023 के लिए ये शरह 3% थी। अगस्त 2023 तक पावर जनरेशन में 14%, डीजल सेल में 11% और पेट्रोल सेल में 8% से ज्यादा इजाफा देखने में आया है। सीमेंट सेल में जुलाई से अगस्त के दौरान 45%, यूरिया सेल में 49% और ऑटो सेल में 18% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की शरह नमू में 42% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार में 72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गंदम की पैदावार 28 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है, जबकि चावल की पैदावार 9 मिलियन टन तक पहुंचने के इम्कानात हैं। फसल की पैदावार में बेहतरी की वजह से पाकिस्तान $5 अरब तक फॉरेन एक्सचेंज बचा सकेगा। 2 माह में डॉलर की कीमत में 50 रुपए से ज्यादा कमी हुई और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन गई। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन और गैर कानूनी शहरियों की मुल्क बदली से भी मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। सितंबर में तजारती खसारे में भी 48.2% तक कमी आई है। पाकिस्तान IMF, बैनुल अक़वामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से मजमूई तौर पर $1.4 अरब वसूल करेगा। पाक फौज और निगरान हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरज़म है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ने अटॉर्नी जनरल और बिजली सप्लायर्स कंपनीज को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अहमद फवाद से मजीद जान लेते हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा हफ्ते की जो कास्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इस कास्ट लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतल्लिक जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। कास्ट लिस्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर को केस की जो समाअत है वो की जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि 15 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में मजीद जो 2 जजेस हैं उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल होंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अटॉर्नी जनरल और जो बिजली सप्लायर्स कंपनीज हैं इनको आइंदा समाअत का जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। जी अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में जराइम पेश अफराद और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। सोराबगोट और जन्नत गुल टाउन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद घरों की तलाशी ली गई। 1000 से ज़ायद अफराद की तलाशी के बाद 30 मशकूक और गैर मुल्की तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में ख़वातीन के साथ 200 अहलकारों ने हिस्सा लिया है। कराची में जराइम पेश अफराद और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इन कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। सोराबगोट और जन्नत गुल टाउन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद घरों की तलाशी ली गई है। 1000 से ज़ायद अफराद की तलाशी के बाद 30 मशकूक और गैर मुल्की तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में ख़वातीन के साथ 200 अहलकारों ने हिस्सा लिया है।
कराची में जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। सोराब कोट और जन्नत गुल टाउन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक नुमान रफीक से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को मालूमात दे सकते हैं कि ईस्ट पुलिस को ये इतलात मिली थी कि कुछ मुश्तबा और मशकूक अफराद जो हैं और जराइम पेशा अफराद जो हैं वो इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। तो एक बड़ी फोर्स के साथ इस इलाके का बाकायदा घेराव किया गया और घेराव करने के दौरान वो तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए। ये इलाका है जन्नत गुल टाउन का, जहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिली और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन था। इसमें खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया, घर घर तलाशी ली गई। कमोबेश बताया जाता है कि 200 से ज्यादा घरों को जो है वो चेक किया गया और इस वक्त जब ये कार्रवाई जारी थी तो उस वक्त उनके पास एक डिवाइसेस मौजूद थी जिसकी मदद से वो जो अफराद मुश्तबा अफराद दिखाई दे रहे थे उनकी शनाख्त भी उनकी तस्दीक की गई। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 30 मशकूक और गैर मुल्की तारकीन वतन को जो है वो हिरासत में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। नुमान रफीक हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।